برطانوی پارلیمنٹ کے احاطے میں مشتبہ شخص کا پولیس اہلکار پر چاقو سے حملہ، جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ حملے کے وقت پارلیمنٹ میں اجلاس جاری تھا، وزیر اعظم سمیت تمام ارکان محفوظ رہے۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ ایوان میں مطلوبہ تعداد پوری نہ ہونے پر فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے 28ویں آئینی ترمیم کی منظوری ملتوی۔ جے یو آئی، بی این پی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی مخالفت۔ مذہب اور عقیدے کا غلط استعمال دہشت گردی تصور ہوگا، ملزمان نجی وکیل کی خدمات بھی حاصل کر سکیں گے۔ پارلیمنٹ نے فوج کے لیے جگہ چھوڑ دی، یہ جمہوریت پسندوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو کم حیثیت محسوس کر رہے ہیں، فرحت اللہ بابر کی تنقید۔ شہری رحمان کہتی ہیں پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے ترامیم پیش کی، سویلین حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے واضح لاہ عمل نہیں دے سکی۔ اسپاٹ فکسنگ پر ایف آئی اے کو کسی درخواست کی کوئی ضرورت نہیں، ادارہ مکمل تحقیقات کرے گا، کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، وزیر داخلہ کی وضاحت۔ ایک تو ایف آئی اے اس کی مکمل تفتیش کرے گی، دوم ایف آئی اے کو کسی ادارے کسی آرگنائزیشن سے لکھنے کی یا درخواست دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں، کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں، چودھری نثار کا مخالفین کو جواب۔ سندھ کی بات کرنا سندھ کارڈ نہیں، اداروں کے درمیان تلخیاں وزیر داخلہ نے پیدا کی۔ مولا بخش چانڈیو کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ عمران خان کی ایک بار پھر نجم سیٹھی پر تنقید، کہا کہ صرف کرکٹرز پر کرپشن کا الزام کیوں، الیکشن فکسر سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی بنایا گیا۔ شمالی وزیرستان میں ضرب اسد کے دوران 8000 مکانات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں، 2370 کیس درست ہیں، دیگر کا سروے جاری ہے، وزیر سیفران کا قومی اسمبلی میں بیان۔ اورکزئی ایجنسی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، کل عدم ٹی ٹی پی کمانڈر سمیت 5 دہشت گرد ہلاک، جھڑپ میں میجر مدثر اور سپاہی متی اللہ شہید، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تو آغاز میرا، تو انجام میرا، ایک رہنا یہی کہنا، پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ ملک بھر میں کل یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں۔ آئیے آج پھر عہد کریں، پاکستان کو فسادیوں سے پاک کریں گے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا 23 مارچ پر پیغام۔ 23 مارچ 1940 کو ہم نے پاکستان بنانے کا عہد کیا، ہم کامیاب ہوئے۔ آئیے آج پھر عہد کریں کہ ہم پاکستان کو فسادیوں سے پاک کریں گے، کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان۔ ہم سب کا پاکستان۔ امریکہ میں زیر علاج لاڑکانہ کیڈٹ کالج کا طالب علم احمد زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ احمد جلد وطن لوٹ کر ادھوری تعلیم کا سلسلہ پھر سے جوڑے گا، والدین پر امید۔ Sorry, excuse me. You're not in the queue. You're pushing in. Talk to them, but don't push in the queue, please. Please, don't push in the queue. Don't push in the queue. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری اور بیٹے ارسلان افتخار نے دبئی ایئرپورٹ پر لائن توڑ دی، قطار میں کھڑے شخص کی شکایت پر دونوں کو قطار میں لگنا پڑا۔ پنجاب یونیورسٹی میں کشیدگی کی لہر گومل یونیورسٹی تک پہنچ گئی، اسلامی جمعیت طلبہ اور پی ایس ایف آمنے سامنے، پولیس نے صورتحال کو کنٹرول کیا، پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج۔
MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی شیخ عبداللہ پاک سرزمین پارٹی میں شامل، اسمبلی رکنیت چھوڑنے کا اعلان، ابھی اور بہت سے لوگ شامل ہوں گے، مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کب تک ذبح کریں گے؟ یونیورسٹی روڈ 1 ارب روپے میں بن رہی ہے، اتنے پیسوں میں تو 4 سڑکیں بن سکتی تھیں، فاروق ستار کی تنقید۔ تعلیمی قابلیت۔ برطانوی پارلیمنٹ کے احاطے میں حملہ اور پاکستان میں فوجی عدالتوں پر بڑی جماعتیں ڈھیر، لیکن مولانا فضل الرحمان جم گئے، جبکہ باقی کا ملک یوم پاکستان کی تیاریوں میں مصروف۔ 9 بجے کی خبروں میں خوش آمدید، میں ہوں آسمہ اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے برطانیہ سے آنے والی اہم خبر سے۔ سینٹرل لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے احاطے میں مشتبہ شخص نے پولیس اہلکار پر چاقو سے حملہ کر دیا، فورسز نے بروقت جوابی کارروائی کی، میں حملہ آور مارا گیا۔ BBC کے مطابق حملے کے وقت پارلیمنٹ میں اجلاس جاری تھا اور وزیر اعظم سمیت کئی اراکین اندر موجود تھے جو تمام رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے فوراً بعد وزیر اعظم کو ان کی گاڑی میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ویسٹ منسٹر پل پر ایک تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ دوڑی اور اسی کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی جب اطلاع ملی تو پولیس پہنچی، دیگر فورسز پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اطراف کی تمام سڑکیں بند کر دی گئیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ گاڑی ہے جو انتہائی تیز رفتاری سے آئی تھی، فٹ پاتھ پر چڑھ دوڑی تھی اور اس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اطراف کی تمام سڑکوں کو اس واقعے کے بعد بند کر دیا گیا، ایمبولینسز پہنچ گئیں، دیگر امدادی ٹیمیں بھی علاقے میں پہنچا دی گئیں، لیکن اب اطلاعات یہ ہے کہ سرچنگ کے بعد علاقے کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ لندن میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے، BBC کے جاوید سومرو نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جاوید، آگاہ کیجئے گا، واقعہ کب کیسے پیش آیا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، اب تک جو پولیس نے بتایا ہے اس کے مطابق تقریباً مقامی وقت کے مطابق 2:20 پر پولیس کو یہ اطلاع دی گئی کہ ویسٹ منسٹر یا جو ہاؤسز آف پارلیمان ہیں برطانیہ کے سینٹرل لندن میں قائم، وہاں پر کوئی فائرنگ کا یا کوئی شدت پسندی کا واقعہ ہوا ہے، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر وہاں پر کارروائی شروع کی۔ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پہلے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک پہلے واقعے میں کسی شخص نے ایک گاڑی کو جو ویسٹ منسٹر برج ہے اس پر جانے والے لوگوں پر گاڑی کو چڑھا دیا، جس سے تقریباً 4 اور تقریباً 10 لوگوں کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ لوگ زخمی ہوئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہوا وہ پارلیمنٹ کی حدود کے اندر ہوا، جب ایک شخص نے اندر داخل ہو کر ایک پولیس اہلکار پر چاقو سے وار کیا، اور اس شخص کو پہلے پولیس نے، جو سادہ کپڑوں میں ملبوس آرمڈ پولیس تھی، جو ہتھیار بند پولیس تھی، اس نے پہلے اس کو خبردار کیا اور نہ رکنے پر 4 گولیاں اس کو ماری گئی ہیں، اور اب تک یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا ہے یا ابھی زندہ ہے، لیکن پولیس کے مطابق حالات اب کنٹرول میں ہیں اور تمام معاملات کی اب چھان بین کی جا رہی ہے۔ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں جی، انہیں مقامی جو قریبی ہسپتال تھا سینٹ جارجز ہاسپٹل، وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم تھریسا مے ہیں وہ اس وقت موجود تھی پارلیمان میں، لیکن جیسے ہی فائر کی آواز آئی تو جو ان کے سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ اس پورے علاقے کو، جو کہ پارلیمنٹ کے اطراف کی سڑکیں ہیں اور راستے اور روڈ ہیں، ان تمام کو بلاک کر دیا گیا ہے اور پولیس کسی کو آنے یا وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 4 اور 8 کے درمیان لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پر تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پولیس ابھی بھی بہت ساری انفارمیشن ظاہر نہیں کر رہی اور وہ آنے والے شاید گھنٹوں میں زیادہ چیزیں واضح ہوں۔ اچھا جاوید، ہم نے دیکھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کی بہت بڑی نفری پہنچ گئی، دیگر فورسز جو تھی وہ بھی بھاری تعداد میں یہاں پہنچا دی گئی تھی، بھاری نفری ہم نے دیکھی، لیکن عموماً یہاں پر کیا صورتحال رہتی ہے سیکیورٹی، کیونکہ یہاں پر پارلیمنٹ موجود ہے، وزیر اعظم یہاں پر موجود تھی، حساس علاقہ ہے، سیکیورٹی کیسی ہوتی ہے؟ لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ حساس علاقہ ہے، اس حساب سے یہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ آپ سے یہ سمجھ لیں کہ یہ پورے برطانیہ میں جو چند مقامات جو سب سے زیادہ محفوظ تصور کیے جاتے ہیں یا جہاں سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، ان میں ویسٹ منسٹر یا پارلیمان کا جو علاقہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ لیکن
यहाँ की जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल होती है वो उस तरह नहीं होती कि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हों या रेंजर्स और हथियारबंद चारों तरफ तनतनाते फिर रहे हों, बल्कि ज्यादातर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही एक सटल अंदाज में होती है, यानी कि प्लेन क्लोथ्स में, सादा लिबास में पुलिस एहलकार होते हैं, एजेंसीज के एहलकार होते हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर, छतों पर, पार्लिमान के अतराफ में मौजूद रहते हैं। थोड़ी सी आम पुलिस नजर आती है, जैसा कि आप कह लें कि 6 या 10 के दरमियान पुलिस एहलकार होते हैं। आज जब ये वाकया हुआ तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक पार्लियामान के अंदर, ठीक है, बरतानवी पार्लियामेंट के अहाते में आज चाकू से हमला किया गया और इसके साथ साथ लंदन में एक दूसरा वाकया भी पेश आया जब वेस्टमिंस्टर पुल पर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और इस वाकये में कई अफराद जख्मी हो गए। इन दोनों वाकयात पर बीबीसी के जावेद सुमरा में रिपोर्ट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ शो में अभी बात करेंगे पाकिस्तान में फौजी अदालतों के कयाम के तौसी के मामले पर। आपको पता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने की हद तक तो तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत को खूब लताड़ा, लेकिन जब कानून साजी की बात की गई तो एक के बाद एक सारी जमातें ढेर होती चली गई। बिल्कुल आसमा, कल कौमी असम्बली ने 4 के मुकाबले में 255 वोटों से फौजी अदालतों को मजीद 2 साल की जिंदगी दे दी, लेकिन आज जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया तो इसे पहली संजीदा मुज़ामत का सामना करना पड़ा। आज की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नासिर काज़मी। नासिर काज़मी, बड़ी ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जब बिल सेनेट में पेश किया गया है तो मज़ाहमत की गई है इस बिल को लेकर, क्या कुछ हुआ आज सेनेट में, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, जो सबसे खास बात थी आज सेनेट की कार्रवाई की, उसमें वज़ीर आज़म 2 साल बाद आज ईवान में आए और उन्होंने इस इजलास में शिरकत की बगैर किसी हीलो हुज्जत के। आज का मामला जो इस बिल असम्बली ने पेश किया था आर्मी एक्ट में तरमीम का, वो आज बिल आखिर सेनेट में भी पास हो गया। अब इसके बाद फौजी अदालतें दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उनका जो है ट्रायल कर सकेगी, लेकिन जो इस दफ़ा स्पेशल चीज़ है जो थोड़ा डिफरेंट है वो ये है कि इन तमाम मुकदमात को दर्ज करने से पहले, इनको ट्रायल करने से पहले ये इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी को बगैर किसी वजह के ज़ेर हिरासत नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से मुखालफत की थी और साथ ही साथ जो वकील करने का इख्तियार भी यकीनी तौर पर उस जाएगा। अच्छा नासिर, आइंदा मंगल को सेनेट इस मामले को दोबारा उठाएगी। इस वक्त आम तासर तो यही है कि जमीयत उलमा इस्लाम की मुज़ामत भी कुछ ले दे के बाद दम तोड़ देगी, क्या यह दुरुस्त है? ये तासर इस तरह दुरुस्त है कि आज भी अताउर रहमान ने सेनेट के अंदर बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी मजबूरी है कि वो इस एक जो पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से और गवर्नमेंट का एलाय होने की हैसियत से वो इसको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर कुछ मजबूरियां हैं और लफ्ज़ इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। तो यकीनी तौर पर इस तरह के ना सिर्फ JUI फे की जानिब से किए गए बल्कि BNP की जानिब से भी और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। नासिर काज़मी, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपको बताएं कि जिन मिलिट्री कोर्ट्स पर हुकूमत को सेनेट में मुज़ामत का सामना रहा, ये 6ठी मिलिट्री कोर्ट्स हैं। नाज़रीन, पहली मरतबा 1953 में फौजी अदालतें बनाई गई थी और इन अदालतों ने मौलाना मौदूदी और सत्तार नियाजी को सजाएं सुनाई थी। 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने फौजी अदालतें कायम की। फौजी अदालतों ने बलोच सरदारों नौरोज खान और अकबर भुट्टी को सजाएं सुनाई। इसके बाद 1969 में जनरल याहिया खान फौजी अदालतें कायम की गई और इन अदालतों ने नेशनल अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी, अवामी लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं को सजाएं सुनाई और इसके अलावा मिराज मोहम्मद खान और टीवी कंपेयर तारिक अजीज को भी इन्हीं कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई थी। फिर 1977 में जिया के मार्शल लॉ में खुसूसी फौजी अदालतें और सरसरी समात की फौजी अदालतें कायम की गईं। जनरल जिया ने फौजी अदालतों को कलदम करार देने वाले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुदा बख्श मरी और दीगर जजेस को माजूल कर दिया। जनरल जिया की फौजी अदालतों ने सबसे ज्यादा सजाएं सुनाई, जबकि 1999 में जनरल जिया के बाद आने वाली जमहूरी अदवार में भी फौजी अदालतें कायम की गई थीं। कराची के लिए नवाज शरीफ दौर में कायम की गई फौजी अदालतों को गैर आईनी भी करार दिया गया था। फिर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद 2 साल के लिए फौजी अदालतें कायम की गईं और अब इन अदालतों की मुद्दत खत्म होने के बाद मजीद 2 साल की तौसी के लिए कानून साजी का अमल जारी है।
اور नाज़रीन आपने ये तमाम जो रिपोर्ट देखी से ये वाज़े होता है कि जब भी मुल्क में फ़ौजी अदालतें कायम की गईं उसका खमियाजा सियासतदानों को ही भुगतना पड़ा, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि आखिर सियासतदान अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फ़ौजी अदालतों के क़याम पर मुत्तफ़िक़ क्यों हो जाते हैं। यही सवाल आज हमारी साथी नाजिया अशर ने अपने प्रोग्राम न्यूज़ आर विद नाजिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान से किया। ये देखिए ड्यू प्रोसेस हमने इंट्रोड्यूस किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में नहीं है, क्योंकि हम हैं। और हमने इसलिए वोट देने का मतलब ये होता है कि आप अपोज नहीं कर रहे। जब वोट नहीं देते इसका मतलब है कि हम वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सीने पे पत्थर रख के कर रहे हैं। और हमने पिछली दफा भी यही कहा था, एपीसी में भी हम सब मौजूद थे, हमने यही कहा था, यही मौक़िफ़ है। तो पाकिस्तान में फौजी अदालतों के मामले पर जारी बहस, जिसमें सियासी जमातों का मौक़िफ़ समझने में सभी को दुश्वारी पेश आ रही है, इस मामले पर होने वाली तमाम पेशरफ्त हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब जिक्र करेंगे एक और तनाज़े का जो सियासत भी है और क्रिकेट भी। नाज़रीन, आज एक और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि इस मामले पर दोनों इदारों में ठन चुकी है। वज़ीर दाखिला का यह भी कहना था कि पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल में पीसीबी और एफआईए को मिलकर काम करना है, जिसके लिए दोनों इदारों को तरीक़ाकार तय करना होगा। एसआरआईयां क्या शुरू हुई, वज़ीर दाखिला वज़ाहत देने मैदान में आ गए। पिछले 2-3 दिनों से मैं ये खबरें सुन रहा हूं कि एफआईए और पीसीबी में ठन गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार ने कहा कि जोश से ज्यादा होश से काम लेने की जरूरत है। पीसीबी और एफआईए में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, दोनों इदारों का मकसद एक है। मिल के काम करने का एक तरीकाकार तय किया जाएगा। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो इख्तियारात एफआईए के पास हैं वो पीसीबी के पास नहीं है, जो पीसीबी के पास हैं वो एफआईए के पास, मगर ऑब्जेक्टिव एक है। उन्होंने एक बार फिर बावर कराया कि एफआईए को तहकीकात के लिए किसी की दरखास्त की जरूरत नहीं। एक तो एफआईए इसकी मुकम्मल तफ्तीश करेगी, दोम एफआईए को किसी इदारे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिखने की या दरखास्त देने की जरूरत नहीं है। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि क्रिकेटर्स के साथ बुकीज के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। सिर्फ क्रिकेटर्स की हद तक नहीं, इसको वसी करें और बुकीज भी, अगर उनमें कोई पाकिस्तानी है या किसी हवाले से भी पाकिस्तान का राब्ता है तो उसको भी इसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए। जराये के मुताबिक पीसीबी और एफआईए के दरमियान मामला तय पा गए हैं। पहले पीसीबी का ट्रिब्यूनल और फिर एफआईए मामले की तहकीकात करेगा। नाज़रीन, अब ये इदारे कोई काबिल कबूल तरीक़ाकार तय कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हर कोई पब्लिसिटी की इस बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ दिखाई देता है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नजम सेठी पर सख्त तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि क्रिकेटर्स पर करप्शन का इल्जाम क्यों लगाएं जब बोर्ड चलाने वाले खुद बड़े फिक्सर हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन फिक्सर अब पीसीबी में लगा दिए गए हैं। अब शामिल करेंगे एक अच्छी खबर, और ये खबर है अमेरिका से, जहां लाड़काना कैडेट कॉलेज में तशद्दुद का शिकार होने वाला बच्चा अहमद तेजी से जिंदगी की तरफ लौट रहा है। जी हां, अहमद की हालत हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है और उसके वालिदैन पुरुमीद हैं कि उनका बेटा बहुत जल्द वतन वापस लौटेगा। लाड़काना कैडेट कॉलेज में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद अहमद तो माजूर हुआ ही था, अपने मुस्तकबिल का ये हाल देखकर बाप की दुनिया भी अंधेर हो गई थी। अगर मैंने अपने बच्चे के लिए भीख मांगी तो क्या हो जाएगा भाई? मैं अपनी मुल्क को कौन से मांगूंगा? मीडिया ने इस मामले पर हुक्मरानों को जगाया तो फिर आस बंधी और दुखी बाप की फरियाद हुकूमती ईवानों तक पहुंची और अहमद को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। अमेरिका में जेर इलाज अहमद की हालत हर गुजरते दिन के साथ अब बेहतर हो रही है। उसकी गर्दन की हड्डी का कामयाब ऑपरेशन भी हो चुका है और अब फिजियोथेरेपी के जरिए वो मामूल की जिंदगी की तरफ लौट रहा है। कैडेट कॉलेज लाड़काना में अहमद के दोस्त उस लड़के के मुंतजिर हैं जो उनके साथ दौड़ता और स्विमिंग करता था। वही अहमद जो फौजी अफसर बनने के ख्वाब देखा करता। अहमद अब ठीक हो रहा है और बहुत जल्द लाड़काना कैडेट कॉलेज में उसके कह कहे गूंजेंगे
اور والدین اپنے لخت جگر کے سپنے پورے ہوتے دیکھیں گے۔ पढ़ाई फर्स्ट पोजीशन जाना, पढ़ाई में ध्यान देना, ख्याल रखें, हम सब ने देखेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का झगड़ा गोमल यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया और मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज की हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज वहां क्या सूरत हाल रही, इसी पर बात करेंगे लाहौर में मौजूद हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट से। तो हुमा, इस सारी सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए। जामिया पंजाब में गुज़िश्ता रोज होने वाले तसादुम के बाद आज हंगामा आराई तो देखने में नहीं आई, ताहम फिजा कशीदा रही और दिन भर पुलिस ने कैंपस का कंट्रोल संभाले रखा। जामिया पंजाब की आज की सूरत हाल के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कल के तसादम के बाद आज तलबा तंजीमों ने पुरअमन रैलियां निकालने का ऐलान कर रखा था, मगर इंतजामिया ने किसी भी खदशे के पेश नजर उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। पुलिस ने पहले ही कैंपस का कंट्रोल संभाल रखा था। तलबा ग्रुप मैदान में आने के लिए कोशां रहे, मगर पुलिस और इंतजामिया ने तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान करके हालात को काबू में रखा। इस मौका पर DIG हैदर अशरफ ने बताया कि कल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के साथ मिल के जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और उसके अलावा हम तमाम ग्रुप्स जो हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बायस जामिया पंजाब में तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर रही। इंतजामिया कोशिश है कि फ्रीकैन को एतमाद में लेकर तो हालात को मामूल पर लाया जा सके। ओवर टू स्टूडियो। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज होने वाले तसादुम की जिम्मेदार दोनों तलबा तंजीमें आज डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी में भी आमने सामने आ गईं। पुलिस की भारी नफरी ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाक़े के खिलाफ पेशावर में एहतजाज भी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगल को 2 तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ, जिसके बाद पैदा होने वाली कशीदगी का दायरा फैल गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी में भी इस्लामी जमीयत तलबा और पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन उस वक्त आमने सामने आ गए जब PSF के कारकुनों ने IJT का कैंप उखाड़ दिया। जिसके बाद दोनों तलबा तंजीमों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को तलब किया और हालात कंट्रोल में आ गए। दूसरी जानिब पेशावर में भी जमीयत के कारकुनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में तसादुम के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र 23 और 24 मार्च को जामिया बंद रखने का ऐलान किया है। और अब शामिल करेंगे सूबाई दारुल हुकूमतों से कुछ अहम खबरें। पहले बात करेंगे कराची की, जहां एक अहम सियासी हलचल ये हुई है कि MQM पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई। रुकने सिंध असम्बली शेख अब्दुल्ला ने पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया और पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शेख अब्दुल्ला आखिरी नहीं और भी बहुत से लोग राबिते में हैं। कल निश्तर पार्क में पार्टी का यौम तासीस मनाएंगे। उधर पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास वजीर आला परवेज खटक की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वजीर शाह फरमान का कहना था कि फाटा में जो इस्लाहात की गई हैं वो ना तो फाटा के अवाम को मंजूर हैं और ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उन्हें कबूल करेगी। और खैबर पख्तूनख्वा PTI और कोalition गवर्नमेंट के खिलाफ एक साजिश है। ये इससे फाटा के अवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला।
लाहौर का इकबाल पार्क यौम पाकिस्तान के मौके पर सिक्योरिटी के बाइस आवाम के लिए बंद कर दिया गया। सैर के लिए आने वाले सिक्योरिटी अमले से तकरार करते रहे, लेकिन फिर खुद ही अपनी ख्वाहिश को दबाकर वापस रवाना हो गए। जबकि इंतजामिया का कहना यह था कि यौम पाकिस्तान पर सरकारी तकरीबात के खात्मे पर पार्क शाम में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। क्वेटा के इलाके हजार गंजी से पशीन जाने वाली मुसाफिर बस मशरकी बाईपास के इलाके अख्तराबाद में उलट गई। हादसा दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए पेश आया। बस उलटने से 22 मुसाफिर जख्मी हो गए, एक की हालत नाजुक बताई जाती है। अब आपको खबर दें कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में फोर्सेस ने जश्न नौरोज की एक तकरीब को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की मुमकिन साजिश नाकाम बना दी। मेजर समेत 2 फौजी शहीद हो गए, जबकि कलदम तहरीक तालिबान के सरकर्दा कमांडर समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का कहना है कि अर्ज़ वतन को फसादियों से मुकम्मल पाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक लोर और अगजई के इलाके मीराक और कलाया में सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस का वहां मौजूद दहशतगर्दों से सामना हुआ। फायरिंग के तबादले में कलदम तहरीक तालिबान के अहम कमांडर शाह दौरान समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए मेजर मुदस्सिर और सिपाही मतीउल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। फोर्सेस ने मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार भी कर लिए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा पकड़ा गया है। मरने वाला दहशतगर्द शाह दौरान तकरीबकारी के लिए अफगानिस्तान से और अगजई एजेंसी आया था। उसने नौरोज तकरीबात को निशाना बनाना था। शहीद फौजियों की नमाज जनाजा कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अदा कर दी गई और मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी पैगाम में कहा है कि वतन को फसादियों से पाक करेंगे, क्योंकि ये है हम सबका पाकिस्तान। आइए आज फिर अहद करें कि हम पाकिस्तान को फसादियों से पाक करेंगे, क्योंकि ये है हम सबका पाकिस्तान। तो फसादियों का खात्मा किया जा रहा है। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। इस हवाले से तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी नजर डालेंगे यौम पाकिस्तान की तैयारियों पर जो जोरों शोर से जारी है। यौम पाकिस्तान को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने वाले शोहदा और कौमी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। तेईस मार्च की सुबह को शकरपड़िया के करीब मुसल्लह अफवाज की शानदार मुश्तरका परेड होगी। परेड के दौरान मुसल्लह अफवाज अपनी पेशावराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करेंगी। पहली बार चीन का दस्ता और तुर्की का बैंड परेड का हिस्सा होगा। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ऐवान सदर में पाकिस्तान के हीरोज के लिए एजाज़ात का ऐलान करेंगे। ISPR ने इस मौके पर खूबसूरत नगमा भी जारी कर दिया है। मेरा एक रहना, यही कहना, पाकिस्तान हम सबका। 23 मार्च 1940 को लाहौर में होने वाली करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसने जनूबी एशिया के मुसलमानों को एक नया तशख़्ख़ुस दिया। पाकिस्तान की तारीख में वो लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। 23 मार्च के इस यादगार दिन को मनाने के लिए कौम भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।